ये सामने देखिए, सामने सामने। Come on everybody, round of applause. Thanks, while Hi Rizvi, how you doing? पहले तो बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इस amazing event. I believe ये 7th edition है और मैं चाहूँगा कि इसका जो मैसेज है ये बहुत लोगों तक पहुँचे, बिकॉज जब हम आप बहुत जमा है मेरे से भी आप लगता है खुशी जैसे आपको लग रहा है जैसे how life is moving past. We realize that many times बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं that we don't realize, and if we had tested ourselves we would have done better. So this message is for everybody, for your parents whom you love. Do you love your parents? So you are young, so it's amazing. But this time when your parents are doing a health checkup every year, do check for cancer also, especially the ladies, okay? And men for prostate cancer, women for lots of other cancers that they can contract because of the food and the environment. But we cannot really eradicate something, we cannot eliminate something, but we can become aware. So take this responsibility today, all of you. Chapat khaoge mere saath? Whenever your parents every year are doing a test, medical test, to also add the cancer awareness test, the cancer test, so that you can prevent and you can save lives, yeah? A step in time stays 9, so all the very best to everybody. I have a flight to catch. I also want to thank all the dignitaries out here who have made this, who have come here and graced this occasion. Thank you for creating the awareness. Thank you for doing what you do. You're doing an amazing job right from the morning. And yeah, love to everybody. Sir, thank you so much for doing this. And to your family for making this event such a big event. Thank you very much. Buddy! Why do I feel Papa is going to be playing now, yeah? Let's have some music, please. Sir, look at sir, smile. Thank you. Yes, sir. Thank you so much. Big round of applause for him. Come on, everybody. Sir. Let's have some music. थैंक यू। पीछे फ्लैग ऑफ की तरफ कुछ छोटे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं। इन केस पेरेंट्स आपके बच्चे फ्लैग ऑफ की तरफ हैं तो प्लीज जाके उनसे मिलके उन्हें लेके आ जाए। The kids are absolutely safe, but आपको जो याद कर रहे हैं तो बच्चों के पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं प्लीज गो टू द फ्लैग ऑफ पॉइंट। मैम रुके मैम, थैंक यू मैम ग्रुप फोटो, कौन ग्रुप फोटो मैम? It's an absolute honor and a pleasure to be here. I'm so happy to see such an amazing turnout for such a superb cause, a wonderful initiative. I can't be prouder. Talking about cancer, you know, I've had so many untimely deaths in my family. 2 of my 4 grandparents lost their lives to cancer at a young age of 50. My aunt, my uncle, again at the young age of 45 and 47. So cancer, you know, we have this thing in our heads that, oh, it's a disease that comes at a later stage, oh, we're too young.
but prevention begins from now. And none of us are too young. Like Terence earlier said, when our parents have their yearly checkups, please make sure that the cancer tests are included. Young girls, you all must get ovarian cancer vaccines. It's something I've had lots of years ago in order to prevent it. Prostate cancer in men. These are just few of the dirty, the C word, that can inflict us. Today we live in an environment that is so polluted. Our food is not like it was before when our grandparents and great-grandparents were growing up. It's highly infected with pesticides. Everything is polluted, adulterated. We live off packaged foods, plastic, things like this which we never had years and years ago, and our grandparents didn't know this life. So we have to be far more careful, and I think as young adults, it's a priority, and it's also all of our liability. And I hope you'll take this initiative further. Thank you so much for having me. This foundation is doing such a great job, and it's really an honor and pleasure to be here. Very well said about the problems of the cancer. This not only comes after the test, but before it starts, you have to see that the rotten food that you take outside, you are aware actually what food you are taking, and the food also causes that. Okay, very well said, madam. Thank you so much, ma'am, for calling us here. It's an amazing experience being here. Or since we are doctors also, and we know what a person goes through when he suffers from cancer. So, cancer awareness abhi bahut zaruri hai, and that's what this event is doing. Thank you so much once again for calling us here. अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे. हस्बी रब्बी मेरे साथ पढ़ लो. सिमत नबी बू जहल गया आकाश. मैडम क्रॉस होके मैडम स्माइल. थैंक यू सर. कैंसर अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है. मैं खुद इससे गुजरी हुई हूँ. मेरे खुद के फादर कैंसर से पीड़ित हो गए थे. मैंने उनके लिए योगा को कैंसर बनाया. तो इसलिए आज मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अवेयरनेस बना के रखें कि कैंसर किसी भी टाइम किसी को भी आ सकता है. राइट. उसका प्रिवेंशन हो सकता है, और अगर जिसको भी इंटरेस्ट है वो मेरे पास आएगा. आशिकी बोलो या टू आशिकी तो आशिकी होती है. मैडम लुक क्या मैम. कोई बात नहीं, नो वरीज. लेट्स गो. ओके रेडी मैम. देयर यू गो. Yes, ma'am, look at ma'am. Thank you everybody.
Thank you so much, ma'am. Thank you. आगे रहो मागे पड़े पड़े एक ग्रुप फोटो मैम एक ग्रुप फोटो लुक क्या मैम मैम लुक क्या थैंक यू तो 7 बार आने की आदत से कैसे हो आप सब? मुझे तो पता ही नहीं था कि माशाल्लाह से सुबह 7 बजे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं। 5 बजे से मतलब आप लोगों को देख के तो हम मोटिवेट हो गए और कैंसर अवेयरनेस के लिए हमारे लिए मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा तो अभी यहाँ पे लोग ही अवेयर है बट बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत मुबारक हो मेरा मन ऐसा हो रहा है कि उतर के आप लोगों के सबके साथ मुझे पता है आप लोग अच्छे से फोटो नहीं होंगे चलो ठीक है पक्का फोटो लेके जाऊंगा मैं असू भाई आप कुछ कहना चाहोगे बहुत अच्छा लगा बस मैंने ब्लू लाइन्स पहन के आई है आपके सेल्फी सबके साथ फोटो के अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब एक बार मैं चाहूंगा मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया और आज मैं पहली बार करना चाहूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत प्यारे लोगों में आप लोग बोला 0 से ठीक है ओके गाइस रेडी गाइस लेट्स गो टीम बहुत ही शानदार मैराथन हुआ था और 7वां साल है कितना वक्त लग जाता है इस इतने बड़े भव्य मैराथन को के लिए और हर साल गेटिंग बिगर एंड बिगर क्या कहना 7 नंबर इज़ वैसे भी इज़ वेरी लकी फॉर मी और मुझे पता ही था क्योंकि ये साल तो दो बड़ी चीज़ हुई ये मैराथन कंप्लीट हुआ अभी दिसंबर में मेरी बेटी की शादी है तो हम दोनों एज पेरेंट्स के लिए भी बहुत चैलेंज था और एज प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर एंड फाउंडर्स ऑफ हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन क्योंकि अगर हम मैराथन नहीं करते तो जो ये मैराथन से जो पैसे आते हैं वो कैंसर पेशेंट्स के लिए जाते हैं तो हम दोनों के लिए बहुत चैलेंज था एज फाउंडर्स भी और एज पेरेंट्स भी फिर भी हमने ये हिम्मत की ये जानते हुए भी कि माई डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड इन दिसंबर फिर भी ये हिम्मत की ताकि और भी दूसरी बेटियों की हम मदद कर सकें यस ये बार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हर साल से ज़्यादा ये साल बहुत ज़्यादा क्राउड था बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ थे बहुत VIPs थे आप जैसी मीडिया थी जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया बहुत सारे रनर्स ने पार्टिसिपेट किया मैं चाह रही थी ये मैराथन बहुत छोटा हो बिकॉज़ मेरे लिए चैलेंज था एक तो बारिश बिल्कुल रुक नहीं रही थी टिल 4:30 अगर आप हमारी BTS देखेंगे जो ज़रूर हम डालेंगे टिल 4:30 हम रेत डाल रहे थे और पूरी तरह से जो पानी है उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे मगर आफ्टर 5 o'clock हमने वो चैलेंज ले लिया 7:30 टिल 8 AM मैं पूरी तरह से भीग रही थी वो ग्राउंड में
और भीगते भीगते ही ये मैराथन को हम दोनों ने कंप्लीट किया। रनर्स ने तो बहुत इन्जॉय किया एंड उसके बाद में अल्लाह की रहमत हुई कि धूप आ गई। थैंक यू एवरीबडी साथ देने का और बिल्कुल हमारे बाजू बराबर करने का। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? जो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कैंसर के लिए जो एक बहुत ही हम लापरवाह हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, जो द बेसिक चीज़ है, आप उस पर कितना काम करो और क्या मैसेज देना चाहोगे? हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो नाम है वो एक मदद का नाम है। मदद खुद के लिए, हेल्प योरसेल्फ। जब हमारे जो ट्रेजरर हैं रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के श्री साकिब अख्तर हसन रिजवी साहब, जो कैंसर से पीड़ित थे और विद इन 2 years वी लॉस्ट हिम। वी हैड लॉट ऑफ मनी बट वी कुडंट सेव हिम। उनके जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो सके, क्योंकि उनके जाने के बाद हमने बहुत सारी रिसर्च की कि हम उनको क्यों नहीं बचा सके। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर जब रिसर्च करने गए तब पता चला कि बहुत सारे लोगों को पैसे की कमी से भी लोग मर जाते हैं। तब हमने ये मुहिम छेड़ी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपनी स्कूल और कॉलेजेस में, हमने डिटेक्शन शुरू की, हमने कैंप्स शुरू किए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई महिलाओं के लिए। महिलाएं आगे नहीं, महिला टीचरें आगे नहीं आना चाहती थी। दे वर वेरी स्कैर्ड कि अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा तो शायद डिवोर्स हो जाएगा, शायद हमें छोड़ दिया जाएगा। दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर रिजवी कि ये तो एक शुरुआत थी, मगर कुछ ऐसा करते हैं कि हम रहे ना रहे मगर ये मदद का कारवां चलता रहे। इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन बनी। बहुत सारे हमने कैंसर डिटेक्शन कैंप्स किए, हम अभी भी करते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं। ये मैराथन के ज़रिए without any donation, there is no sponsor to the Saqib Rizvi Cancer Memorial Marathon. There is only one sponsor, that is Dr. Akhtar Hassan Rizvi. No sponsor. 2 से 3 करोड़ खर्चा होता है। जो भी टिकट का पैसा आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर पीड़ित लोगों को जाता है। ऑपरेशंस होते हैं, कीमोथेरेपीज़ होती हैं और बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा कि कैंप में कैंसर पेशेंट 100 कैंसर पेशेंट्स बैठे थे। उनके लिए अलग खाना था, उनके लिए किट थी और उनको एक पर्टिकुलरली जगह दी गई थी, एक इम्पोर्टेंस दी गई। क्योंकि ऑफकोर्स जब हम कहते हैं कि साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंसर अवेयरनेस मैराथन, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बहुत सारी उनको मदद करने की इच्छा होती है, बहुत लोगों को बचाने की इच्छा होती है। जहाँ तक हमारी कोशिश है हम कर पाते हैं। जी हाँ, हिजाब रन मैं बता दूँ आप सबको कि हिजाब रन ये डिफ़ाइन नहीं करता है कि ये एक मुस्लिम मैराथन। हिजाब रन इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर मुझे लोगों ने कहा कि बुर्खा पहन के औरतें भाग सकती है क्या, तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं। ज़रूरी है कि टी शर्ट पहनकर, टोपी पहनकर भागे। अगर एक घर की मुस्लिम महिला जिसके बच्चे हैं, जो खाना बनाती है, जो टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक आम औरत है जो घर में खाना बनाती है, अपने बच्चों को देखती है, वो भी इच्छा रखती है कि मैं दौड़ूं और दौड़ में हिस्सा लूं, मगर सिर्फ ये फियर कि हिजाब में मुझे भागने का मौका मिलेगा या नहीं। तो ये रन उन औरतों के लिए है जो अपने घर से बाहर आना चाहती हैं, वो हिम्मत जुटाना चाहती हैं और इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहती हैं। लास्ट ईयर इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ये साल इनफैक्ट हम दोनों की तरफ से जिस बच्ची ने भी हिजाब रन जीता है उसको टिकट टू मदीना फ्री है, उसको 14 दिन का उम्रा फ्री है। तो वो जो भी बच्ची है, आई एम श्योर शी इज़ वेरी लकी। शी वॉज़ अ गर्ल एंड शी वॉज़ अ वेरी यंग गर्ल जो जीती है। कल या परसों तक शायद मैं उनका नाम भी डिक्लेयर करूं जिसको टिकट टू मदीना मिला। थैंक यू सर।